કોવિડ-19 અનુસંધાન જેને પણ કોરોના લાગુ પડે છે તેમને એક ડર હોય છે, પરંતુ હવે એવું નથી. કોરોના મટ્યા પછી પણ શરીરમાં રહેલી ગંભીર બીમારીમાંથી જ્યારે ઓપરેશન સફળ બને છે અને એક સામાન્ય માણસ સામાન્ય જિંદગી જીવી શકે છે, તેવું એક કદાચ સમગ્ર વિશ્વની અંદર પ્રથમ ઓપરેશન નડિયાદની DDMM હાર્ટ હોસ્પિટલમાં અત્યારે કરવામાં આવેલું છે, જેમાં 26 વર્ષની એક મહિલા જેમણે બાળકનો જન્મ આપ્યો હતો અને એ 26 વર્ષની મહિલાને કોરોનાને મહાત આપી ત્યારબાદ એક જટિલ ઓપરેશન નડિયાદમાં કરવામાં આવ્યું છે. તેના વિશેની વધુ માહિતી મેળવીશું અહીંના ડૉક્ટર પીટર સાહેબ સાથે. DDMM હાર્ટ હોસ્પિટલ નડિયાદમાં છે અને નડિયાદની મેઇનલી કાર્ડિયક હૃદયને સંબંધિત જે રોગ છે એના માટે જ છે. અને રિસન્ટલી જે 26 વર્ષની મહિલાનું ઓપરેશનના વિશે વાત કરવાનું હોય તો એમનું જન્મજાતની એક કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિઝોર્ડર માર્ફન સિન્ડ્રોમ કહેવાય એ હતું. એના કારણે જે હૃદયની મેઇન ધમની છે જે ડાયલેટ થઈ ગયો હતો અને અંદરથી પણ ફાટી ગયો હતો, પ્લસ બંને વાલ્વ બગડી ગયો હતો. એટલા માટે જે બંને વાલ્વનું રિપેર કરવામાં આવ્યું, મેઇન ધમની રિપ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવ્યું વિથ ગ્રાફ્ટ. અને એ પેશન્ટ એકચ્યુઅલી કોવિડ પોઝિટિવ હતો ઓપરેશનના પહેલાં, અને 4 અઠવાડિયા માટે એમનું ક્વોરન્ટાઇન કર્યું અને ત્યાર પછી ફરીથી બધું ટેસ્ટ રિપીટ કર્યા પછી ત્યારે નેગેટિવ થયા, ત્યારે જ ઓપરેશન કર્યું. અને ઓપરેશનથી સારું રીતે પ્રસાર થઈને એમના બાળક જોડે રિયુનિયન તરીકે થયું અને ત્યાર પછી પાછા ગયા. સર, સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન મુખ્ય વસ્તુ કઈ છે કે જેને કારણે આપણે આ વિશ્વની અંદર પ્રથમ ઓપરેશન કરી શકીએ? જે કોમ્બિનેશન જે હું કહું છું કે માઇટ્રલ વાલ્વ રિપેર પ્લસ આયોટિક વાલ્વ રિપેર, જે ગ્રાફ્ટની અંદર રિપ્લેસમેન્ટ થયું, ગ્રાફ્ટની અંદર રીઇમ્પ્લાન્ટ થયું, પ્લસ એસેન્ડિંગ એઓર્ટા રિપ્લેસમેન્ટ, આર્ચ ઓફ ધ એઓર્ટા રિપ્લેસમેન્ટ, પ્લસ એલિફન્ટ ટ્રંક જે ઓપરેશન કહેવાય, આ કોમ્બિનેશન પ્રથમ થયું છે. સર, આ ઓપરેશન દરમિયાન કઈ પરિસ્થિતિમાંથી દર્દી અને સમગ્ર ટીમ પાસ થઈ છે? આ ઓપરેશન દરમિયાન કેમ કે મેઇન ધમનીનું ઓપરેશન છે, પેશન્ટ અંદર લોહી હોય તો ઓપરેશન કરવા બહુ મુશ્કેલ છે. એટલા માટે અમે પેશન્ટનું 18 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ સુધી અમે કૂલ કરીએ છીએ. એકદમ આખા શરીર ત્યારે 18 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ થઈ જાય તો આખો લોહી પેશન્ટમાંથી કાઢી નાખીએ છીએ. અને ત્યારે પેશન્ટમાં બિલકુલ લોહી નહીં હોય 18 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં અમે ઓપરેશન કરીએ છીએ રિપ્લેસમેન્ટ કરવાનું એઓર્ટામાં. સ્ટડીઝ એવું બતાવ્યું છે કે અડધો કલાક સુધી પેશન્ટ ટોલરેટ કરી શકાય છે 18 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં હોય તો એટલે ઝડપથી ઓપરેશન કરાવીને ત્યાર પછી પાછા લોહી એમના શરીરમાં મૂકવા આવે છે. એ દરમિયાન મગજમાં પણ લોહી નહીં હોય તો એટલે એકવાર લોહી આપ્યા પછી આખા શરીર, મગજ, કિડની, બાકી બધા લિવર, બધા હૃદય ઓફકોર્સ બધું બરાબર ચાલે છે યા નહીં એ જોવાનું બહુ અગત્યનું હોય છે, એ મોનિટર કરવાનું અગત્યનું હોય છે. અને ઓલમોસ્ટ 1 દિવસ લાગ્યું પેશન્ટ બરાબર જાગ્યા પછી બધું રીતે બધું સિસ્ટમ્સ બધું બરાબર ચાલતું થાય ત્યાં સુધી અમને નેચરલી ટ્રીટમેન્ટ અને મોનિટરિંગ ચાલુ હોય આખા ટીમનું. સર, આ પેશન્ટ કોવિડ-19માંથી પસાર થયા પછીની જે એમની પરિસ્થિતિ હતી અને તેની અંદર પણ એક 26 વર્ષની માતાએ આ સંઘર્ષ કર્યો, શું કહેશો? એ બહુ સારું વસ્તુ કહેવાય, કેમ કે આપણે અત્યારે બધાનું ભય ફેલી ગયું છે કે કોવિડ હોય તો એક ભાઈએ મને આજે સવારે કીધું કે કોવિડ હોય તો ફૂલ સ્ટોપ. એવું નથી. કોવિડ હોય તો ફૂલ સ્ટોપ નથી. કોવિડ હોય તો આનાથી 99% સારું થઈ શકાય, લોકો સારું થાય છે અને થયા પછી પણ એકદમ નોર્મલ જિંદગી લીડ કરી શકાય. એ આપણને
મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ છે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ કે આટલું આપણને હોપ રાખવું જોઈએ કે અમે સારું થાય છે, આપણે ડિટર્મિનેશન હોવું જોઈએ, અને મન મક્કમ જે કહીએ છીએ એ રાખીને આપણે ડિટર્મિનેશનથી આગળ ડેફિનેટલી કોવિડનું તમે આપણે डिफीट करी शकाय छे. ओके, मेरा नाम डॉक्टर मनीष दास है. मैं नडियाद DDM नडियाद हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जन की तरह जॉब कर रहा हूँ. इस पेशेंट का जो हमने अभी डिस्कस किया है, मिसेस अयमन सिद्दीकी, इनका जो मेन सर्जरी हुई है आफ्टर कोविड इन्फेक्शन, जो कोविड की रिकवरी के बाद, इस पर्टिकुलर सर्जरी का जो ख़ास बात है वो ये है कि पहली चीज़ है कि इस पेशेंट में 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं सर्जरी के, जिसमें कि इनका माइट्रल वाल्व रिपेयर हुआ है, एओर्टिक वाल्व स्पेयरिंग रूट रिप्लेसमेंट हुआ है, देयर इज़ आर्च रिप्लेसमेंट, और 4th पार्ट है जो कि एलिफेंट ट्रंक प्रोसीजर कहते हैं इसको हम लोग, सर्जिकल जो टर्म है सर्जरी का. ये सारे पार्ट्स जो मिला के टोटल सर्जरी का ड्यूरेशन वाज अराउंड 10 आवर्स, जिसमें से 6 घंटे हार्ट लंग मशीन पे थे, और उस 6 घंटे में से एक स्पेशल टेक्निक हमने जो यूजुअली बेसिक सर्जरीज जो हम लोग रेगुलर सर्जरीज करते हैं उसमें नहीं करते, वो था डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट. उसका मतलब ये है कि हम लोग बॉडी का टेम्परेचर, जो कि ऑलरेडी पेशेंट हार्ट लंग मशीन पे है, मशीन के ज़रिए हम बॉडी को कूल करके नॉर्मल टेम्परेचर जो हम सर्जरी करते हैं वो करते हैं अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस पे. इसको ओवर टाइम मे बी 1 और 2 आवर्स के टाइम में स्लोली टेम्परेचर कूल डाउन करके 17 डिग्रीज तक लाते हैं. 16 to 18 इज़ द रेंज, और उस रेंज पे हम लोग हार्ट लंग मशीन को टोटली सर्कुलेशन कट ऑफ कर सकते हैं. हमारे पास विंडो पीरियड है टोटल ऑफ 30 मिनट्स, कि इस 30 मिनट्स में हमें दोबारा सर्कुलेशन स्टार्ट करना है बिफोर हम लोग आगे दोबारा से अरेस्ट कर सकें सर्कुलेशन. तो हमने जो इस पर्टिकुलर सर्जरी का जो भाग है वो उस 30 मिनट्स में से अराउंड 10 मिनट्स में कर लिया था, और उसके बाद हमने बाकी सर्कुलेशन इंक्लूडिंग ब्रेन सर्कुलेशन दोबारा से पंप पे स्टार्ट करके और बाकी के जो प्रोसीजर हैं वो रिपेयर किए. तो अगर आप मेरे से एक बात पूछेंगे इस पर्टिकुलर सर्जरी में खास क्या है, तो मेरे हिसाब से डीप सर्कुलेटरी हाइपोथर्मिक अरेस्ट इज़ द स्पेशल एंड डिफरेंट टेक्निक जो हमें इस सर्जरी में करनी पड़ी. सर, जब हाफ घंटे तक जो उसको डीप फ्रिज में जैसे ठंडक में रखते हैं, तो उस वक्त उसका हृदय भी बंद होता है, ब्लड को भी निकाला जाता है, तो फिर से ये जीवित कैसे होता है? नॉर्मल हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर हम लोग उनको टेम्परेचर कूल डाउन कर दें तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है. और रिसर्च ऐसी देखी गई है, और इट्स अ वेल नोन टेक्निक, जिसमें कि हम लोग 30 मिनट्स इज़ द अपर लिमिट. 30 मिनट्स तक अगर हम सर्कुलेशन बंद कर दें बॉडी का और टेम्परेचर मेंटेन करें, दैट इंक्लूड्स द बॉडी का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, जिसके लिए हमारे पास स्पेशल कूलिंग ब्लैंकेट्स होते हैं, और सर्कुलेशन जो हमने ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन जो हम बॉडी में कर रहे हैं हार्ट लंग से, उसका टेम्परेचर 17 डिग्रीज़ है, प्लस हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो AC का होता है वो भी कूल डाउन करके, तो वी कैन एक्चुअली ईजिली मेंटेन जो टेम्परेचर है फॉर 20-25 मिनट्स. तो 30 मिनट्स जो मैंने आपको बताया वो अपर लिमिट है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो हार्ट लंग मशीन का है, बिकॉज हार्ट लंग मशीन के बिना हम लोग बीटिंग हार्ट पे ये सब प्रोसीजर नहीं कर सकते, जिसके लिए हमारे पास हमारे परफ्यूजनिस्ट हैं, नीलेश मैकवान उस टाइम पे हार्ट लंग मशीन पे थे. उसके अलावा जो है एनेस्थेटिस्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग कूल डाउन करते हैं और बाकी जितना भी प्रोसीजर हो रहा है, तो उनमें जो मॉनिटरिंग स्पेशली और प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ये जो है वो एनेस्थेटिस्ट का जॉब होता है. सर्जिकल जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और जो सर्जरी है उसमें सर्जन्स का मेन रोल होता है. इट्स अ टीम एफर्ट, प्लस डेफिनेटली वी हैव अदर सपोर्टिंग स्टाफ, वी हैव स्टाफ नर्सेज जो होती हैं OT में हेल्प कराती हैं. सर्जरी के बाद ICU में मैनेजमेंट के लिए भी हम लोगों को ट्रेन टीम चाहिए. अगेन वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट और ICU स्टाफ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. और डेफिनेटली अगर आपके पास अच्छा टीम वर्क है तो यू सी गुड रिजल्ट्स. जैसे कि ये लड़की बहुत यंग है, शी इज़ 26 ईयर्स ओल्ड, और जो वैल्व हम मैकेनिकल वैल्व जब डालते हैं उनकी जो लाइफ कह सकते हैं वो होती है अराउंड 10 to 15 ईयर्स. बट अगर हमारे बॉडी के अपने जो नेचुरल वैल्व्स हैं, अगर वो वैल्व नॉर्मल हैं,
तो और हम उनको अगर प्रिजर्व करें तो उसमें दो फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक उसको खून पतला करने की जो दवाई हमें खानी पड़ती है मैकेनिकल वैल्व्स के साथ, वो नहीं खानी पड़ती। दूसरा कि इसमें अगर सारे पैरामीटर सब नॉर्मल रहते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एटलीस्ट 15-20 ईयर्स तक दोबारा रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने काफ़ी जर्नल्स में रिसर्च किया, काफ़ी वी लुक्ड लॉट ऑफ जर्नल्स, जिसमें हमें जितना भी देखा हमने उसमें ये लगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 4 प्रोसीजर्स, जिसमें कि खास बात है कि वैल्व स्पेयर किया हमने, नेचुरल वैल्व स्पेयर किया है, प्लस आर्च एंड ये सारे प्रोसेस सेपरेटली डेफिनेटली हर जगह होते हैं, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, बट ऑल 4 प्रोसीजर्स इन वन पेशेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो पोस्ट कोविड इरा है एंड शी वॉज पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव थी विद अ लॉट ऑफ लंग चेंजेस। इनके HRCT वॉज पॉजिटिव इन अगस्त, और क्वारंटाइन होने के बाद और अपना जो भी ट्रीटमेंट लिया कोविड का, उसके बाद दोबारा से मेजर सर्जरी करना जिसमें कि 6 घंटे तक हार्ट लंग मशीन पे रहना, ये अपने आप में एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दुनिया में अगर हम देखें तो इसके जो इंसिडेंस है वो 1 in 5,000 केस से, अगर 5,000 लोगों में ऐसी बीमारी हम काउंट करें तो उसमें एक आदमी में 5,000 लोगों में गिनती करें तो एक आदमी मिलेगा। इंडिया में जो इंसिडेंस है वो 10 लाख लोगों में एक होगा जिनको ऐसा होता है। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, इनका फैट में डिलीवरी हुई थी इनकी, तो उसी टाइम पे उसके बाद 2 महीने बाद हम लोग को मालूम पड़ा कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। तो मुंबई में ट्रीटमेंट चालू थे, बट इतना कहीं पे हम लोग को सही डॉक्टर नहीं मिला। फिर यहाँ पे हम लोग लेके आए, 3-4 महीने कुछ ये ट्रीटमेंट चालू हुआ इसका, यहाँ के डॉक्टर्स, लेकिन फिर बाद में गुजरात हम लोग अंकलेश्वर में करवाए थे। फिर हम लोग को किसी ने सजेस्ट किया कि आप नडियाद लेके जाओ। फिर यहाँ पे हम लोग ने दिखाए तो बोले कि इमीडिएट इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इनको बहुत बड़ा हार्ट का डिजीज़ है। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे चेकअप हुआ तो मालूम पड़ा उसी टाइम पीरियड में इनको कोरोना हो गया। तो कोरोना का हम लोग ने ट्रीटमेंट दिया, इनको क्वारंटाइन में रखे 14 डेज़। फिर जब लेके आए उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी उनको ये हुआ कि अभी कैपेबल नहीं है ये ऑपरेशन के लिए, 1 वीक और रखना पड़ेगा। 1 वीक और रखे, जिसकी वजह से इनका हार्ट का वॉल था शायद वो भी फट गया था एक। तो ऑपरेशन हुआ, अभी इतना सबको आइडिया भी नहीं था क्योंकि सबने जवाब भी दे देते कि शायद ही बचेंगे। हम लोग जवाब नहीं दे सकते, हम लोग भी प्रे किए बहुत, यहाँ के जितने स्टाफ्स हैं सारे लोगों ने प्रे किए। तो फिर 8-10 दिन में इनको होश भी आ गया। इनका ऑपरेशन 12 आवर्स का था, बट जल्दी ऑपरेशन भी हो गया इनका। और 8:30 को हमको न्यूज़ मिली कि इनका ऑपरेशन हो चुका है, जो कि सक्सेस हुआ है। फिर दूसरे 3-4 दिन में पता चला कि अभी कैपेबल है, लाइटली होश में आए हैं, आँखों खोल रहे हैं। एंड 10 दिन में माशाल्लाह इनको सब पूरा आराम हो गया और आज खा रहे हैं अपने हाथ से। अभी कुछ टाइम पहले इनको पाइप से पानी और खाना दिया जा रहा था, अब तो ऐसा है हम खुद च्युइंग करके खा सकते हैं, इतना कैपेबल है। और वॉक भी कर रहे हैं, इनके फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो भी गाइड कर रहे हैं इनको अच्छे से, एंड हमको भी बता रहे हैं कि ये चीज़ करना है आपको।